بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما یوجب الوضوء. اب یہاں سے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے. وضو واجب کرنے والی چیزوں کا باب. جن چیزوں سے وضو واجب ہوتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں کا باب، یعنی ان چیزوں کا بیان ہوگا اس باب میں. 8 چیزیں وضو توڑ دیتی ہیں. 8 چیزیں کیا ہے؟ وضو توڑ دیتی ہیں. وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 8 چیزیں ہیں جو کچھ پیشاب یا پاخانہ کی راہ سے نکلے وہ وضو توڑ دیتا ہے. اور منہ بھر قے اگر ہو، الٹی ہو اور وہ منہ بھر ہو، بھر منہ ہو، تو وہ وضو توڑ دیتی ہے. اور بہتا خون اگر نکل جائے، ٹھیک ہے، اس سے بھی کیا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. بے ہوشی، کہ وضو تو تھا لیکن بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہوا تو اب وضو ٹوٹ گیا. بے ہوشی بھی وضو توڑ دیتی ہے. نشہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایسا نشہ کہ جو کم سے کم اتنا ہو کہ اس سے قدم لڑکھڑائے. اگر ایسا نشہ ہے کہ قدم لڑکھڑاتے ہوں، ڈگمگاتے ہوں، اس نشہ سے کیا ہے؟ وضو اور غفلت کی نیند. یعنی ایسی نیند کہ جس سے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. کسی کو کیا کہتے ہیں؟ غفلت کی نیند. اسی لیے غفلت کی نیند فرمایا. لہذا اگر ایسی نیند ہو کہ جسم کے اعضاء ڈھیلے نہ پڑتے ہوں، جسم کے جوڑ یا جسم کے اعضاء اگر ڈھیلے نہ پڑتے ہوں تو ایسی نیند سے وضو نہیں جاتا. جیسے مثلا کوئی شخص، یعنی ایک مرد جو ہے نماز میں رکوع میں سو جائے. اگر رکوع میں نیند آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. یا سجدے میں نیند آ جائے، مرد کو نماز میں سجدے میں نیند آ جائے، تھوڑی دیر وہ سو لے پھر بیدار ہو، اس سے بھی وضو نہیں جاتا. ہاں، اگر عورت سجدے میں سو جائے تو اس کا وضو چلا جاتا ہے. اس لیے کہ عورت سمٹ کے سجدہ کرتی ہے نا، مرد یعنی پھیل کے سجدہ کرتا ہے. تو حالت سجدہ میں اگر وہ سو جائے گا اور غفلت کی نیند ہوگی تو ایسی صورت میں وہ پھر گر جائے گا. اگر نیند غفلت کی ہوگی، یعنی ایسی نیند ہوگی کہ اس کو غافل کر دے، ایسی صورت میں وہ سجدے میں نہیں رہے گا، وہ گر جائے گا. یا رکوع میں کوئی سوئے گا، ایسی صورت میں غفلت کی نیند ہوگی تو ایسی صورت میں وہ گر جائے گا، وہ رکوع میں نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے. اعضائے جوارے اگر، یعنی جسم کے اعضاء اگر ڈھیلے پڑ جائیں، نیند میں جسم کے اعضاء اگر ڈھیلے پڑ جائیں تو ایسی صورت میں اگر کوئی رکوع میں ہو وہ گرے گا نہیں. ایسے ہی یعنی سجدے میں ہے، جسم کے اعضاء اگر ڈھیلے پڑ جائیں تو ایسی صورت میں سجدے سے بھی وہ گر جائے گا، حالت سجدہ میں نہیں رہے گا نا. اس لیے فرمایا غفلت کی نیند. ٹھیک ہے. اور رکوع سجدے والی نماز میں زور سے ہنسنا. رکوع سجدے والی نماز میں زور سے
हंसना, इससे भी वजू टूट जाता है। कैसे रुकू सजदे वाली? जैसे फजर की नमाज क्या है, फजर में फ़र्ज़ है या सुन्नतें हैं, ज़ुहर में फ़र्ज़ या सुन्नत या नफल है, असर में सुन्नत या फ़र्ज़ है, मगरिब में फ़र्ज़ सुन्नत या नफल है, इशा में फ़र्ज़ है, सुन्नतें हैं, नवाफिल है, वितर है, ये सब रुकू सजदे वाली नमाज है ना। नमाज जनाजा अच्छा है, नमाज जनाजा उसमें रुकू और सजदा नहीं है ना। इसीलिए अगर यानी हंसने में वो हंसी वज़ू को तोड़ देती है कि जो रुकू और सजदे वाली नमाज में ज़ोर से हंसे, वरना अगर रुकू और सजदे वाली नमाज में ऐसे अगर आप ज़ोर से हंसते तो वज़ू टूटता है? नहीं टूटता है। अगर ऐसे कहा लगाते हैं तो वज़ू नहीं टूटता नमाज की हालत में टूट। लेकिन हाँ, रुकू और सजदे वाली नमाज की हालत में, जैसे 5 वक्ता नमाजें हैं या और दीगर नवाफिल हैं जिसमें आप रुकू और सजदा करते हैं, हाँ, अगर कोई नमाज जनाजा में कहा लगाए तो भी वज़ू नहीं टूटेगा, नमाज तो टूट जाएगी, वज़ू नहीं टूटेगा। ठीक है, वज़ू अगर कोई नमाज जनाजा में कहा लगाए तो ऐसी सूरत में नमाज तो उसकी फासिद हो जाएगी लेकिन वज़ू फासिद नहीं हो। और इन नमाजों में जैसे फजर है, ज़ुहर है, असर है, मगरिब है, इशा है या नमाज जुमा है, यानी जितनी भी रुकू और सजदे वाली नमाज है उन नमाजों में से किसी भी नमाज में अगर ज़ोर से हंसा तो ऐसी सूरत में नमाज तो फासिद होगी, नमाज तो गई, साथ में नमाज जाने के साथ साथ उसका वज़ू भी उस हंसी से चला जाएगा कि फिर दोबारा ये नमाज पढ़ना है तो फिर वज़ू के बगैर उसकी नमाज नहीं हो सकती, वज़ू भी चला जाता है, दोबारा बनाना। इसलिए सजदे यानी रुकू सजदे वाली नमाज में ज़ोर से हंसना और मुबाशरत, ठीक है। तो ये 8 चीज़ें हैं जो वज़ू को तोड़ देती है। तो जैसे कि आपने बताया खून का बहना, कई बार जैसे वज़ू करते करते कई बार दांतों में हल्का खून आया, मतलब किसी को बादी होती है, कुछ आया, जैसे कुल्ली करी या गलाला करा, दांतों से किसी बादी तो खून आता मुस्तकिल था, उससे खून अगर इतने मिकदार में है, ठीक है, अगर खून अपने इससे यानी जिस जगह से वो निकल रहा है अगर वो उस जगह से जुदा हो जाए, ठीक है, उस जगह से बहता खून अगर निकलकर अपने मखरज से जुदा हो जाए तो ऐसी सूरत में वो वज़ू को वाजिब कर देता है। और अगर वो अपने मखरज में है, अपनी जगह है, जब तक वो अपने मखरज में है वो नाक़िज़ वज़ू नहीं। जब वो अपने मखरज से जैसे ही जैसे ही अपने मखरज से खारिज होगा बहता खून, वो क्या है, नाक़िज़ वज़ू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तुक़बलु सलातुम मन अहदस हत्ता यतवज़्ज़ा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेवज़ू नमाज कबूल नहीं होती, बेवज़ू नमाज कबूल नहीं होती यहाँ तक कि वज़ू कर ले, हत्ता यतवज़्ज़ा, यहाँ तक कि वज़ू करे। कबूल से मुराद यहाँ नाजायज़ होना है कि नमाज कबूल नहीं होती, मतलब नमाज जायज़ ही नहीं होती, दुरुस्त ही नहीं होती, ठीक है। और वज़ू से हकीकी और हुक्मी दोनों मुराद है, यानी तयम्मुम, वज़ू हकीकी ये वज़ू करना है, और वज़ू हुक्मी कि अगर कोई वज़ू पर कादिर नहीं है तो ऐसी सूरत में तयम्मुम फ़र्ज़ है। तो तयम्मुम क्या है, वज़ू हुक्मी है। तो वज़ू से मुराद हकीकी और हुक्मी दोनों है। बेवज़ू की नमाज बग़ैर वज़ू के या तयम्मुम के
जायज़ ही नहीं। मतलब यही है कि बेवज़ू की नमाज बग़ैर वज़ू के या तयम्मुम के जायज़ ही नहीं है। और अहनाफ के नज़दीक, हम हनफियों के नज़दीक, जिसे वज़ू के लायक पानी ना मिले या तयम्मुम के लायक मिट्टी ना मिल सके तो वह नमाज क़ज़ा कर दे कि नमाज का वक्त हो चुका, अब वो वज़ू की ज़रूरत है, वो क्या है, नापाक है, बेवज़ू है, नमाज के लिए वज़ू कर रहा है, वज़ू के लायक पानी ना हो तो फिर वज़ू हुक्मी यानी तयम्मुम करे। और तयम्मुम के लायक पाक मिट्टी भी नहीं है, ठीक है, या जिन चीज़ों से तयम्मुम किया जा सकता है वो चीज़ें ना हो तो वो नमाज क्या कर दे, क़ज़ा कर दे। और अगर क़ज़ा का मौका पाने से पहले ही वो फौत हो गया, उसका इंतकाल हो गया, क़ज़ा का मौका नहीं मिला, तब तक वो फौत हो गया, तो हमारे यहाँ उस पर कोई गुनाह नहीं है। नमाज फौत करने यानी नमाज क़ज़ा करने का उस पर कोई गुनाह नहीं, ठीक है। और हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यह हदीस क्या है, दलील है कि आका ने फरमाया कि बेवज़ू नमाज कबूल नहीं होती जब तक कि वज़ू न कर ले। और उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी ने जानबूझकर क़स्दन, अगर किसी ने क़स्दन बेवज़ू नमाज पढ़ ली तो उसका ये नमाज पढ़ना बगैर वज़ू के जानबूझकर नमाज पढ़ना ये क्या है, कुफ्र है। अल्लाह, जानबूझकर बेवज़ू नमाज पढ़ना कुफ्र है, जबकि वो नमाज को हल्का जानता। इसलिए कि नमाज को हल्का जानना ये नमाज की तौहीन है ना, नमाज की इहानत। और नमाज की इहानत, नमाज की तौहीन बिलाशुबा क्या है, नमाज न पढ़ना ये जुर्म तो है ही, गुनाह तो है ही, लेकिन नमाज को हल्का जानना, ठीक है, नमाज को हल्का जानना ये क्या है, नमाज की इहानत है, नमाज की तौहीन है। और नमाज की तौहीन, नमाज की इहानत ये क्या है, कुफ्र। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दौलत ईमान और दौलत इल्म से